The next session where we are going is eat better, not less. And हमने पर्पजली ये लेक्चर डाइट लंच के बाद रखा है, तो आप गिल्टी ना हो जो आपने खाया है उसके लिए। जो अभी खाया उसको यही भूलिए, और अभी जो नेक्स्ट सेशन में डॉक्टर बताएंगी वो आपको कल से फॉलो करना है। With this, I invite Dr. Manisha Talim, a renowned diabetologist practicing at Dadar, attached to Shushruta Hospital, for this talk. Please, ma'am. Thank you. Good afternoon. A warm welcome to all of you, and a big thanks to Dr. Tushar Rege and DFC India for organizing such a wonderful program. Hats off to your positivity and dynamism, sir. Thank you for getting us all together. My lecture is on eat better and not less. So let's see what we just did some time ago, but there's no harm in starting now and then in the future. First of all, what we eat is of urgent importance because it determines what happens to your cells, because every cell is like a major magical universe, and each thing that you eat causes chemical reactions, and those chemical reactions affect the functions of the body. So therefore, we have to be careful about everything we eat. So what are the various food groups? There are 4 main groups: carbohydrates, proteins, fats, and fiber, as you all know. Now, currently, what we consume is quite different as to what should be consumed. So carbohydrates should be in the range of 45 to 55%. But what we consume is anywhere between 60 to 70%. Proteins we require about 15 to 20%, but on an average what we are having is about 8 to 12%. As regards the fat, we need about 20 to 25%, but what we are having is more or less like that. As regards fiber, we need about 25 grams to 40 grams per day, but what we consume is around 5 to 10 grams. So this is how our food is, and this is how we need to change it. So how do we eat better? By eating fresh, by eating local, by eating seasonal, by eating organic, avoiding various preservatives, by having sustainable food that will be good for the environment. It will help not only us, but generations after us also. And it's been seen in many studies, ये देखा गया है कि अगर हम हमारा खाना हमारे कल्चर के हिसाब से लें, तो हम उसको ज़्यादातर फॉलो करते हैं. So if we want a diet plan to be successful in the long run, it has to be based on our culture. You will ask me, what about genes? It's there in my family, so my sugar is bound to be high. Why should I bother about food? But it's not that. Today we have a field known as epigenetics, where there are various studies which shows that what the parents to be eat and what the mother eats during pregnancy, that affects the child's not only the immediate future, but also the health of several generations to come. This is known as, this is the change that we can do. So clearly, genes are modifiable by the right nutrition. There is this study which was a Pune maternal nutrition study, which also showed that when there was a deficiency of vitamin, is it Hindi में, पूना मैटरनल न्यूट्रिशन स्टडी में ऐसा दिखाया गया कि जब विटामिन B12, विटामिन D3 कम था तो उसका असर जीन्स पे हुआ. तो जो प्रेग्नेंट विमेन खाना खाते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसका असर उसके बच्चे पे होता है, और उसके बाद में उसके फ्यूचर में क्या डिजीज़ होंगे वो भी, और उसके बाद में उसके जनरेशन्स को भी. तो इसी के लिए हमारा खाना इम्पॉर्टेंट है. पहले तो हमें सबको मालूम है कि कैलोरी जो है वो खाने का यूनिट ऑफ एनर्जी है. जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है उनसे हमें 4
कैलोरीज पर ग्राम मिलता है और फैट से 9 कैलोरी ग्राम मिलता है। हमारा जो एनर्जी है बॉडी में वो अलग अलग हिसाब से यूज़ होता है, सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं। पर अगर एक्सरसाइज तो है, पर अगर हम इधर से उधर चले उससे भी हमारा कैलोरीज कम हो जाता है। उसके अलावा जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में भी कैलोरीज यूटिलाइज होते हैं, और उसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट में प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती है। इसके अलावा जब हम रेस्ट करते हैं तो जो एनर्जी यूज़ होती है उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, और ये अलग अलग लोगों में अलग है। इसी के लिए कुछ लोगों में वज़न जल्दी से कम हो जाता है और कुछ लोगों को नहीं, तो इसी के लिए हमारे में वेरिएशंस होता है। एनीवे, हमारा टॉपिक है खाने के बारे में। तो क्या सब कार्बोहाइड्रेट सेम है? नहीं। जो सिंपल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जैसे शक्कर, हनी, मध, गुड़ और मैदा, ये चारों सिंपल या रिफाइंड है। और जब हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो जो हमारे होल व्हीट या राइस या जौ, बार्ली या ज्वार या इतने सारे मिलेट्स हैं, उस सब में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब ऐसा दिखाया गया है कि जब हमारा डाइट सिंपल शुगर या रिफाइंड शुगर में ज़्यादा हो तो पैनक्रियास पे स्ट्रेस हो जाता है। पैनक्रियास और इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और धीरे धीरे पैनक्रियास का इंसुलिन कम होते जाता है जब तक पूरा ख़त्म हो न जाए। तो इसी के लिए हमको ये एस्पेक्ट देखना चाहिए कि हमारा डाइट में ज़्यादा सिंपल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए। एक स्टडी हुआ है जिसका नाम है स्टार्ट स्टडी। वो हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में किया गया, और ऐसा देखा गया कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया में सब जगह में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा था और प्रोटीन इंटेक कम था। तो कार्बोहाइड्रेट को हम अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वेट के हिसाब से, तो 15 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंजेस। सेकेंड है क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में आप सबने सुना होगा। तो ये क्या है? ये अगर हम ग्लूकोज को 100 मार्क्स दें, तो जब जो कुछ खाना जो हम खा रहे हैं उसका अगर हमने 50 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट लिया, तो वो 50 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर को कितना बढ़ाएगा एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज, उसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। वे डिफरेंट टाइप्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं। लो यानी 0 to 55, मीडियम यानी 56 to 69, और हाई यानी मोर देन 70। तो हमें देखना है कि हम ज़्यादातर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स लें, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ब्लड शुगर पे असर होता है। अगर हमारा खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है तो ब्लड शुगर पे कम असर होगा। अब आप पूछेंगे कि हमें कभी राइस खाना है तो हम क्या करें? हमें तो राइस पसंद है, तो इट इज़ नॉट कंप्लीट नो। हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों से ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर सकते हैं। तो एक्चुअली जब हम खाने का पोर्शन थोड़ा कम करें या उसके साथ अलग चीज़ें दें, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम कम कर सकते हैं और उसका अच्छा असर हमारे शुगर पे हो सकता है। अगर आपने फल खाएं, तो अगर आपको डायबिटीज़ हो तो आपको फल फ्रेश ही खाना चाहिए, बहुत दिनों के लिए घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसे वो राइप होते जाता है उसका शुगर कंटेंट बढ़ता है। तो इसी के लिए ईट फ्रेश, ईट एज सून एज पॉसिबल। फाइबर, फैट और प्रोटीन, इनसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर अच्छा असर होता है। यानी अगर आपके खाने में ज़्यादा फाइबर या फैट या प्रोटीन हो कार्बोहाइड्रेट के साथ, तो उसका असर है कि वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप राइस ले रहे हैं
तो उसके साथ अगर आपने दाल लिया, प्रोटीन लिया, तो राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अगर इंस्टेड ऑफ वाइट राइस हमने ब्राउन राइस लिया या रेड राइस लिया तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। उसके अलावा अगर हमने हमारे खाने पे लेमन जूस या विनेगर डाला तो उससे भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो इस तरह हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स इम्पॉर्टेंट नहीं, तो ग्लाइसेमिक लोड भी इम्पॉर्टेंट है, यानी क्वांटिटी ऑफ फूड। तो ऐसा नहीं कि आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाया तो बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, उसका भी प्रमाण होता है। तो वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, पर उसमें ज़्यादा वाटर कंटेंट है। तो इसी के लिए अगर हमने एक स्लाइस वाटरमेलन लिया, majority of it is water, small amount is carbohydrate, so the glycemic load of watermelon is small, so you can have it. तो इस तरह आप आपका फूड एडजस्ट कर सकते हैं। पोर्शन साइज इम्पॉर्टेंट है। एक स्टडी रिसेंटली हुआ था जिसका नाम है प्योर स्टडी, और इसमें दिखाया गया साउथ इंडिया में कि जो लोग ज़्यादा राइस खाते हैं उनमें डायबिटीज़ होने की चांसेस ज़्यादा है। अगर उनका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है तो डायबिटीज़ होने की चांसेस ज़्यादा है। अगर वो 4 कटोरी से ज़्यादा चावल खाते हैं तो उनका डायबिटीज़ होने का चांस और ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू लेस देन 1 कटोरी ऑफ राइस। सो क्लियरली हमें बेटर कार्ब्स खाने हैं। एक राइस चाहिए तो इंस्टेड रेड राइस, और यू कैन हैव ब्राउन राइस या वाइट राइस को वेरियस वे में ऑल्टर करके ले सकते हैं। आई मस्ट ऐड कि साउथ इंडिया में उन्होंने एक हाई फाइबर राइस, वाइट राइस भी बनाया, जिससे उन्होंने दिखाया है कि उसका अच्छा असर होता है। तो हमारे पास तो अभी दिस इज़ द ईयर ऑफ द मिलेट्स, तो डेफिनेटली हम मिलेट्स ले सकते हैं, नाचनी, ज्वारी और कितने सारे मिलेट्स हैं। जवार ले सकते हैं, राजगिरा ले सकते हैं, बकव्हीट ले सकते हैं, सब्जा ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं और बार्ली ले सकते हैं। ये सब एंशिएंट ग्रेन्स हैं जो पहले हम यूज़ करते थे, पर हमारा अभी डाइट चेंज हो गया है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, इट्स जस्ट गोइंग बैक टू द ओल्ड, और उसी से हम इम्प्रूव हो सकते हैं। ये ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन है, और एज़ कम्पेयर टू राइस और व्हीट उनमें प्रोटीन ज़्यादा है। यानी आपके राइस और व्हीट में भी थोड़ा प्रोटीन होता है, पर दीज ग्रेन्स हैव मोर प्रोटीन एज़ कम्पेयर टू दोज 2 ग्रेन्स। नेक्स्ट वील जस्ट टॉक अबाउट फैट। तो हमें मालूम है कि फ़ैट का असर एक तो एनर्जी देने में, एनर्जी स्टोर करने में, और स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड फंक्शंस टू प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सो ये सब फंक्शंस फैट्स में हैं। फैट्स सब जगह में सेम नहीं होते हैं। एक टाइप का है सबक्यूटेनियस जो हमारे स्किन के नीचे होता है, और दूसरा है विसरल फैट जो हमारे ऑर्गन्स को सराउंड करता है। और ये जो फैट है, अभी मुझे एक बात बोलनी चाहिए कि एक स्टडी हुआ था जिसमें प्रोफेसर युडकिन और प्रोफेसर याग्निक ने किया। प्रोफेसर युडकिन लंदन के हैं और प्रोफेसर याग्निक पुणे के हैं, और उनका दोनों का BMI सेम था, विच इज़ बॉडी मास इंडेक्स। पर जब उनका MRI किया तो ऐसा पता चला कि डॉक्टर याग्निक का अब्डोमिनल फैट, जो पेट के अंदर का फैट है, वो काफ़ी ज़्यादा था। और वही हमारे कैरेक्टरिस्टिक है भारतीय लोगों का कि हमें बाहर से पता नहीं चलता, पर अगर हम एनालाइज करने को गए तो हमारे अब्डोमिनल में काफ़ी ज़्यादा फैट है। और ये फैट सिर्फ ऐसे ही इनर्ट नहीं है, उससे दूसरे वेरियस हार्मोन्स तैयार होते हैं जिससे शुगर और कोलेस्ट्रॉल और अलग चीज़ों पे असर होता है। अभी फैट्स, सैचुरेटेड फैट बोलेंगे तो घी, कोकोनट ऑयल और बटर। अनसैचुरेटेड फैट अलग टाइप के होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड मीनिंग ग्राउंडनट और ऑलिव ऑयल। ओमेगा 3 फैट जो होता है वो फिश ऑयल, फिश और फ्लैक्स सीड्स में होता है।
और ओमेगा 6 जो है वो सनफ्लावर, सैफला, कॉर्न ऑयल में ज़्यादा होता है। ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रियलाइज्ड होते हैं, वो वनस्पति और मार्जरीन में होते हैं और उनका प्रमाण हमको ज़ीरो रखना चाहिए, क्योंकि उनका कुछ बेनिफिट नहीं है पर इट इज़ ओनली हार्मफुल। वी मस्ट बी अवेयर कि हम जब बोलते हैं 20 to 25% फैट, 6 to 10% जो फैट है वो इनविजिबल है, जो हमारे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, इन चीज़ों में है। तो जब हमारा ऑयल का क्वांटिटी कम करना होता है वो 10 to 15% के रेंज में रखना पड़ता है। ओमेगा 3 फैट जो है वो हमें खाना चाहिए, हमारे डाइट में कम है, उसका उपयोग काफ़ी चीज़ों पे है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे आर्टरीज़ को पेटेंट रखती है, खुला रखती है, ब्लॉकेजेस प्रिवेंट करती है। इसी के लिए बादाम, अखरोट, पिस्ता, उड़द दाल, मेथी, राजमा, मच्छी, और जो वेजिटेरियन है तो एल्गे, जो पानी के ऊपर पेड़ होते हैं उनसे, उनको हम एल्गे बोलते हैं, तो उनसे सप्लीमेंट्स भी तैयार होते हैं। जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है वो हमारे नट्स और ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल में होते हैं। तो क्लियरली हमें राइट फैट, जो ओमेगा 3 फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ये दो फैट हमारे डाइट में कम नहीं होने चाहिए। प्रोटीन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एंजाइम्स, हार्मोन्स, नर्व्स, मसल्स, ऑर्गन्स सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रोटीन बराबर होना चाहिए ताकि हमारा पेट भरा रखे, उसको सेशियटी बोलते हैं। 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं और हमें खाने से मिलना चाहिए, और वेजिटेरियन सोर्सेज में सब इसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं। तो वेजिटेरियन सोर्सेज में हम उसके साथ कुछ सीरियल ले सकते हैं ताकि हमको अमाइनो एसिड्स मिले। तो कैसे हम प्रोटीन इम्प्रूव कर सकते हैं? हम अलग अलग दाल खा सकते हैं। कुलित जो हॉर्स ग्राम है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, 20 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स, और उसको हॉर्स पावर ग्राम बोलते हैं क्योंकि वो हॉर्सेस को देते थे, रेस हॉर्सेस को, फॉर एनर्जी। So this is of course edible by us. So kurit, red gram, green gram, masoor, moth beans, cow beans, black gram. Instead of having processed protein shakes, हम सत्तू का प्रोटीन शेक खा सकते हैं जो रोस्टेड चिकपी फ्लावर है, कुलित का पिठला, मिसल और सूप, वेज और नॉन वेज सूप। इस तरह हम प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं। ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि सोकिंग एंड स्प्राउटिंग इज़ गुड। जो कुछ फाइटेट्स करके प्रोडक्ट्स है उनको निकाल देते हैं ताकि हमारा विटामिन और मिनरल बराबर से हम अब्जॉर्ब कर सके। अभी फाइबर जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं? सोल्यूबल फाइबर जो है वो कोलेस्ट्रॉल और शुगर पे अच्छा असर रखता है, तो ओट ब्रांड, बार्ली, इसबगुल और फ्लैक्स सीड्स पे। और इनसोल्यूबल जो है हमारे मोशंस के लिए अच्छा है, वेट के लिए अच्छा है, तो होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, बीन्स और पीस के ऊपर। अभी आप ऑफ कोर्स जानना चाहेंगे कि फ्रूट्स के बारे में, तो फ्रूट्स, होल फ्रूट्स लीजिए, आपका पोटेशियम नॉर्मल होगा तो आप ले सकते हैं। कुछ चीज़ें डायबिटीज़ के लिए सही हैं, वो ले सकते हैं। It's got stuck. Can you? He won't know. He won't know. Hey, next slide, brother. So we'll talk. हाँ, salt of course keep it less than 1 चमचा से कम लीजिए। शुगर के बारे में of course नेचुरल शुगर जो है वो फलों में और दूध में होता है, उससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, पर एक्स्ट्रा शुगर मत ऐड कीजिए। और प्रोसेस फूड में हिडन शुगर होता है अलग अलग नाम से, तो जो बॉक्सेस है, पैकेजेस है, उस टाइप का खाना मत लीजिए।
स्वीटनर्स में नेचुरल स्वीटनर्स जैसे स्टीविया और डेट्स अच्छे हैं। फर्मेंटेशन ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे इडली डोसा दही में फर्मेंटेड जब हम लेते हैं तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ज़्यादा होता है, जिससे हमारा कार्बोहाइड्रेट अब्जॉर्प्शन इम्प्रूव होता है। तो ये चीज़ें ज़रूर लीजिए। हमारा स्नैक्स में ये याद रखिए कि कभी कभी हंगर और थर्स्ट में हम मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि सेम पाथवे होता है ब्रेन में। तो देख लीजिए कि आपको प्यास लग रही है कि भूख, नहीं तो अननेसेसरली आप ज़्यादा खाएंगे। फ्लूइड्स में तो ऑफकोर्स पानी हमें 2 लीटर लेना चाहिए, पर आपके हार्ट के कंडीशन के हिसाब से आपका फ्लूइड इनटेक डिसाइड होगा। आप अगर डायबिटिक हो तो अगर पोटेशियम नॉर्मल हो तो कभी कभी कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। कुछ स्टडीज़ थे जहाँ पे लो कैलोरी डाइट दिया गया और उसमें देखा गया कि शुगर कम हो गई, पर 1 साल के बाद 50% लोगों में वापस शुगर बढ़ गई। तो एकदम लो कैलोरी डाइट बहुत डिफ़िकल्ट है और उसका साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपका तेल वापस यूज़ मत कीजिए, और फ्राइंग अगर शैलो हो या डीप हो तो भी उससे फ़र्क होता है, तो भी उससे आपको तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। हमारा डाइट इंडियन होना चाहिए, तो होल ग्रेन बेस्ड लो फैट predominantly lacto vegetarian traditional Indian diet supplemented by omega-3 fat. We should avoid fatty, fried, refined and ultra processed food. So eat better, not less, but make sure you remember about portion control. Thank you. Thank you.